आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिसको प्रिवेंट किया जा सके कि यार आपने 10 साल का बिजनेस बना बनाया छोड़ के नया बिजनेस स्टार्ट किया? After 5-6 years, I realized, okay, my name is not there. What am I building for? What will happen? I mean, तो एकदम छोड़ के फिर आपने 6 महीने में it took me 10 years. तो दूसरा बात तो आपका झटका एक और लग गया ना जब आपको शार्क टैंक ने वो बैन कर दिया था। Next day, we had a meeting with the team. They were all very sad. कि, फास्ट फैशन आ रहा है, 2 घंटे में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। Do I really need a dress in next 2 hours? No. I don't know how many Instagram pages are opening, which is around fashion. Start करना बहुत easy है, पर scale को बड़ा करना और scale maintain करना is one of the biggest challenge. कोरियन ड्रेस इंडिया में इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है आज? Korean, anything is big in Northeast India. वहाँ पे people are crazy about Korean fashion. सो हायरिंग में क्या प्रोसेस, मतलब क्या देखते हो आप हायरिंग के अंदर? If that person can take ownership of the situation. क्या क्वेश्चन पूछते हो आप? सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है that पर आजकल तो बोला जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, आपको मार्केटिंग करना है। आई थिंक इन फैशन यू हैव टू बैलेंस इट आउट, क्योंकि आप अगर डिमांड जनरेट कर रहे हो और सप्लाई में लैक कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू बी देयर. और मार्केटिंग में क्या क्या कर रहे हो आप अब? तो हम मेरे को ये जानना है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बिजनेस करते हैं, दो दोस्त मिलके कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिसको प्रिवेंट किया जा सके कि यार आपने 10 साल का बिजनेस बना बनाया छोड़ के नया बिजनेस स्टार्ट किया? नहीं, मैं देखो 4-5 साल तो समझने में ही लग गया, क्योंकि लाइक आई टोल्ड ना, नहीं फ़र्क पड़ता था मुझे इतना। तो प्रोडक्ट से ही हमेशा लव, इट वाज़ ऑल अबाउट द प्रोडक्ट। उसके बाद जब मैंने रियलाइज़ किया कि इट्स नॉट लाइक दैट, यू शुड हैव योर नेम लाइक ऑन पेपर, मतलब लीगल होना चाहिए। दैट इज़ one of the basic thing that you should do. I mean, today if I have to give this knowledge, experience sharing to anybody younger, then I would say that please get all this thing done, because then it keeps. ऐसा जरूरी नहीं कि जो आपके साथ काम कर रहा है वो खराब हो, वो अच्छा ही होगा. I mean, that person will be positive and good, but why to bring it up to your mind, right? That's why you should settle the things very first. कि हाँ चलो लीगल वर्क कर लेते हैं, जो भी फाइनेंशियल, जो भी whatever is, let's get it done so that it never occurs to you also. That, and then you get disturbed, then you are not able to focus, which happened to me. After 5-6 years, I realized, okay, my name is not there. What am I building for? What will happen? I mean, if your name is not there like that, then is it actually yours, or you are just a mere employee because you are not working? I don't say that employee do not work wholeheartedly, everybody does that, but लेकिन when it's yours, you are a founder, then it's something else, right? तो वो तो नहीं हो रहा क्योंकि मेरा तो नाम ही नहीं है. So how it is going to happen? तो when I started talking about it, तो फिर I could see a little bit of reluctancy coming कि नहीं, पेपर में नहीं है तो नहीं, चल तो रहा है. और फिर हाँ, पैसा, we are bootstrapped always, तो it was a profitable company after 3-4 years. तो that percentage of share which was committed to me, उसका जो वो profit बनता था, वो it used to come to me. अब वो कितना प्रॉफिट बनता था वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कि हाँ इतना, अगर मुझे इतना बोला जाता कि इतना बना, एक्स नंबर इज अ प्रॉफिट, आपको इतना 20 जो भी आपका परसेंट आपको मिलेगा और आप इसका, तो फिर वो मुझे मिल जाता था. आई वॉज हैप्पी, आई वॉज कंटेंट, मतलब दैट वॉज गुड फॉर इनफ मनी फॉर मी एट दैट टाइम. So लेकिन then once you start having money, you realize it's not money, it's not always money, right? Then you realize something else, it should be on paper, and then a lot of things started to happen which you feel that nay, sometimes a lot of things are in your mind also. You started to start getting negative about things. क्यों? एनी रीजन, मतलब दो फाउंडर्स के बीच में ऐसा क्या होता है? देखो, आई बिकेम नेगेटिव, राइट? कि अच्छा मेरा तो नाम ही नहीं है पेपर पे, तो एंड ही लाइक आई वो मेरे, आई स्टार्टेड अज्यूमिंग दैट समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन टू मी, दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू पुट माय नेम ऑन पेपर. प्रोबेबली उनके दिमाग में था, नहीं था, टू रॉन्ग में, आई डोंट नो, प्रोबेबली नहीं था, लेट्स अज्यूम नहीं था, लेकिन मेरे तो दिमाग में आ गया ना कि मेरा नाम क्यों नहीं रख सकते पेपर में, क्या प्रॉब्लम होगी, मैं तो फाउंडर ही हूँ, मैंने तो सब कुछ किया, तो फिर व्हाई नॉट? तो दैट नेगेटिविटी स्टार्ट्स क्रीपिंग इन, एंड देन यू स्टार्ट लूजिंग फोकस, राइट। right? And when you start losing focus, you are not into your business 100%. Lot of things go bad, matlab you become responsible for things going bad as well. So I would say that that happened to me. I was not giving my 100% after a certain time, and which I was not happy with, because like I said, I was passionate about product, building a product and all that kind of thing. तो जब वो I could see that it was getting lost. तो फिर मतलब
I was having no, फिर मुझे ऐसा लगता था मैं क्या ही, what is my vision? Why should I have a vision? My name is not there. Tomorrow when somebody would come and see the papers and they will not find my name as a founder, as a director or whatever, then I'm nothing, right? I'm just another employee to whose the money was being transferred and that salary was being given. तो मेरा तो कोई मुझसे पूछेगा भी नहीं ना कि आपका क्या है. Suppose a company comes and acquired that brand. They will not come to me. My name is not there on paper, but I was the one who built it, right? But this negativity starts creeping in and you don't start performing. I found that happening to me. I stopped performing. I just today when I wake up in the morning, I have a zeal. Like even if कल का दिन बहुत खराब था, for example, yesterday was a bad day for the brand. कुछ भी हो खराब था या for me or whatever. But every morning I wake up, I am very energetic. Okay, I have to build it. I have a vision. Come what may, nothing can stop me because this is my thing. I have to build it. Same thing was there in my previous company also. I would wake up and feel very energetic, but when this negativity starts coming in, no, I would not feel that energy to wake up and go. It would be like I would used to dread. Oh, ho jana pad raha hai, karna pad raha hai. So how do you stay in that kind of environment? राइट, तो एकदम छोड़ के फिर आपने 6 महीने में आप नए हाँ, कंपनी फिर बिल्ड, मैंने छोड़ दिया. फिर लेकिन वो ऐसा नहीं हिम्मत कहाँ से आई वो? हाँ, ये एब्रप्ट नहीं था कि मैं आज ही छोड़ूँगी. सी इट टूक मी 10 इयर्स. 5 इयर्स तो ठीक है मैंने सोचा ही नहीं. 5 6 इयर्स तो आई वाज़ वेरी हैप्पी वर्किंग विद लॉट ऑफ पैशन. ये करना है, टीम बिल्डिंग दिस एंड दैट, लॉट ऑफ ए गुड टाइम. लेकिन जब वो लास्ट का 4 इयर्स व्हेन स्टार्टेड कमिंग इन एंड एवरीथिंग, देन आई लॉस्ट द ट्रैक. बट इट टूक मी 4 इयर्स, स्टिल 4 इयर्स. 4 इयर्स लगे। सो ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन मैंने सोचा कि आज के बाद बाय और कुछ नहीं. नो, इट टूक मी 4 एंड हाफ इयर्स कि okay, now it's a time. And I was depressed. As I was very happy. Something negative is gone. No, I was almost depressed for two two 2 months. Crying every time. Like cry. Just sit. I'm sitting talking to my family or whoever, and then tears would come down without even thinking. It was so I was depressed to that level. Lekin I am a kind of also again a person who would not be depressed for long. I'm like कि ठीक है छोड़ो ना तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि पहले चिल-पिल ही ठीक था? हाँ, मतलब मुझे लगा कहाँ फँस गई यार, मैं घर चली जाती अच्छा होता उस टाइम। लेकिन ठीक है से नाउ टुडे व्हेन आई थिंक अबाउट इट, आई बिल्ड समथिंग, आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई बिल्ड देयर। Even today when I say I was a founder of that brand and people would be like, oh wow, I mean that kind of from the if I get to meet a TG who we used to target, then that's a sense of like a proud moment for me. And even today, I think lot of learnings that I bought in from there, I'm able to execute, I'm able to put it into use. So I'm like quite today today I'm very positive, so I'm saying that. लेकिन हाँ, वो डिप्रेशन का टाइम तो मेरे पास I went through that. So yeah, but one thing which I will say that लाइफ में तो प्रॉब्लम आएगा. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दिस वाज माय प्रॉब्लम एंड फेलियर और व्हाटएवर, बट हाउ क्विकली यू आर एबल टू गेट बैक एंड स्टार्ट next round of it is, कैसे किया जाए? so I think that's lot of mental, you have to be very strong for बट that. कैसे बने आप? कैसे बने मेंटली स्ट्रांग? आई थिंक चिल रहना पड़ेगा. उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. मतलब हो रहा है खराब, ठीक है ना, हो गया. कुछ देर रो, क्राई फॉर अ व्हाइल एंड देन जस्ट गेट अप. क्योंकि ला देखा जाए तो यू हैव फ्यू इयर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड फ्यू इयर्स ऑफ टू बिल्ड समथिंग, राइट? टू बी रियली यूजफुल एंड क्रिएट थिंग्स. तो व्हाई वेस्ट टाइम? ठीक है, फेलियर्स भी होगा तो क्राई फॉर अ व्हाइल, बट देन गेट अप एंड स्टार्ट वर्किंग. हुँ, The longer you delay, the longer the duration of your depression, या duration of your not getting out of it is more, the worse it gets for you. So I think depression होता है, cry for a while, get up and start. Because वो तो अपने आप पे बिलीव होना है, क्योंकि I believed in myself when I started my second मतलब little box. I believed in it so much कि मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला कि सब छोड़ो और come and work with me. क्योंकि he was doing job and then he was actually preparing to go for his PhD, which was a very big decision for him. कि नहीं, I have to go out of the country and do my PhD, and he was very interested in that. ऐसा नहीं, that was his just another decision. He was interested in research. He wanted to do that. लेकिन मैंने उसको इतना बोला ना कि नहीं, we will build something good out of it. Just leave everything. That is the kind of trust I had in myself and me and him working together as a team. So, and of course he trusted me as well, and then we could start it. So नहीं, तो दूसरा बार तो आपको झटका एक और लग गया ना जब आपको शार्क टैंक ने वो बैन कर दिया था इंस्टाग्राम। हाँ, नहीं वो सब तो
That's a very small thing. वो तो कुछ भी था मतलब I remember I was in the market only doing some market study. I got a mess क्योंकि I was logged into my main account of the brand Little Box. So I just got a notification your account has been suspended. I immediately knew that our main page has been blocked. Then I just went inside फिर 2-3 फिर there's a group ना Shark Tank का एक group, all the founders are there. Immediately message starts to come because a lot of other companies page also got blocked. But मैंने उसको इतना serious हम लोग ये तो बहुत ही इसको तो seriously लेने वाला मतलब for me I think it's a very small thing, trivial thing, but ठीक है. So we built that community over 2 years. मतलब ये कब हुआ मई में हुआ शायद. Our account got blocked. We started building this in June 2022. So till like almost 2 years के लिए we built a community of almost 280K followers. My और मैं अपना होता फिर भी मैं लेकिन it was also hard work of my team. My team puts a lot of work into it. So I felt bad for that. But then next day we had a meeting with the team. They were all very sad कि what now, what to do. But I was like कुछ नहीं होता, ये एक Instagram पेज ही तो है ना, we'll create once again. क्या प्रॉब्लम मतलब है, ठीक है. थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, consumers got panicked. That was one thing which I got really uh, like we got like what to do now because to consume क्या होता है ना, people see you on Instagram, then they go and buy, and now all of a sudden sometimes they come to your DM and also ask you about your order IDs कि मेरा order कहाँ है, मेरा refund, मेरा exchange कहाँ है. It's convenience for them that they come to DM and ask, and our support team replies on DM. लेकिन वो उनको नहीं दिख रहा था, तो थोड़ा वो 1 week का एक प्रॉब्लम था. कंज्यूमर्स को लगा कि क्या हो गया, what happened. But we immediately, because we also had couple of more backup pages, immediately got into that. My team got into action, reached out to consumers if they are leaving comment here and there, talk to them कि नहीं our page has got suspended, यहाँ पे आ जाओ, we'll talk. तो फिर वो सॉर्ट आउट हो गया. लेकिन ये ठीक है मतलब शार्क टैंक में आई एग्री कि यू कैन नॉट रन योर एड्स एंड ऑल दैट यूजिंग देयर क्लिप व्हिच वी डिड, लेकिन उन्होंने सस्पेंड किया. बट द वर्स्ट थिंग इज दैट आई रोट बैक टू देम लॉट मेनी टाइम्स दैट ठीक है नाउ टेल अस व्हाट आई कैन डू सो दैट माय पेज कम्स बैक. जो भी वट एवर साइंस जहाँ भी साइन करना है बताओ, बिकॉज दैट्स वट वॉज हैपनिंग. दे वर सेंडिंग लॉट ऑफ सम इंडेमनिटी काइंड ऑफ थिंग टू द फाउंडर्स एंड सेइंग कि इसको साइन करोगे तो तुम्हारा रिवोक हो जाएगा. Right. I wrote so many mails, I never got any reply from them, not even a single reply. अब फिर ठीक है, अब कोई रिप्लाई, आई ट्राई टू कॉल ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल कि बात हो जाए, किसी से बात भी नहीं हुआ और कोई मेल भी नहीं आया, वो बैन कर दिया. लेकिन अभी भी आप जाओगे ना, यू विल सी लॉट ऑफ ब्रांड्स यूजिंग उनका वो क्लिप एंड रनिंग देयर एड्स. ऑफ कोर्स आई विल नॉट नेम द ब्रांड्स, बट देयर आर ब्रांड्स, यू जस्ट कीप आई आउट एंड आपको दिखेगा कि लॉट ऑफ ब्रांड जो कर रहे हैं अभी भी, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कह रहा. लाइक what is it? I don't understand. अब somebody from Sony has to explain it to me or someone has to explain कि क्यों ऐसा है. अगर ऐसा है तो it should be per blanket for everybody, right? कोई भी ad हमें दिखना ही नहीं चाहिए कहीं पे भी जिसमें शार्क टैंक का कोई भी क्लिप यूज हो रहा हो. लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा देयर आर स्टिल ब्रांड्स डूइंग दैट. पता नहीं. चलो वेरी वेरी सैड था, बट आपने इसको जल्दी से रिवेंट कर हाँ मतलब लिया, ये सब तो टेंशन नहीं. छोटी छोटी बात है, तो मतलब दिस विल हैपन इन छोटी लाइफ. बात तो नहीं है. हाँ मतलब से बड़ी बात तो है, लेकिन इन अ बिगर लॉन्गर रन ना दिस थिंग्स विल कीप. कल को और भी कुछ होगा ऐसा. इतना तो प्रिपेयर, आई थिंक entrepreneurship is not for faint hearted, right? You have to be strong and you have to be ready कि कल को कुछ भी खराब हो जाएगा. तो इतना तो मुझे समझ आ गया in last 12 years that you need to be prepared. बुरा के लिए अच्छा होता तब तो you are happy. हमेशा लेकिन बुरा के लिए प्रिपेयर हाँ करके बुरा के रखना लिए है. प्रिपेयर रहना है. ऐसा नहीं कि पता है कि क्या बुरा होगा, कुछ भी हो सकता है. जस्ट प्रिपेयर योर माइंड, प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली, उसके बाद तो एवरीथिंग कैन बी सॉर्टेड. मतलब मेरे को आपसे सीखने को मिल रहा है, चिल पिल रहना है, अभी टेंशन नहीं करना. इतना नहीं सोचो. सोचो स्ट्रेटेजी बना लो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसका स्ट्रेटेजाइज करो और इसको स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग. what I like I told, do not prolong your time of getting depressed and sad and thinking about what wrong has happened. ये this is what I believe in. हो गया खराब, एक दिन रो, बस बैठ के उठो, नेक्स्ट डे स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ. नहीं तो फिर यू विल स्टे देयर. राइट. That's how, and this is what I think I get from being coming from Northeast. Stay chill, cool, हो जाएगा, मतलब इतना नहीं उसको करना aggressive. तो that's how. मेरे मेरे ऑफिस में भी एक लड़की है, तो वो भी अच्छा नॉर्थ ईस्ट से है. वो बोलती सर, हो जाएगा. मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है. सर चिल हो जाएगा इतना. मेरे को यार इतना इतना चिल कैसे रहते हो तुम, बोलते भी नहीं हो, काम डेडिकेशन है पूरा. पर मतलब कुछ भी लगता है तो मैं पूछता हूँ उनसे कि वो ऐसे करती.
Yeah, I am one of the person, I think, मेरे vicinity में तो who speaks a lot. So everybody knows in my family, oh, like she speaks a lot. So you'll find people who doesn't, my husband, like part, he doesn't open his mouth. मतलब बिल्कुल सिर्फ आप उसको एक क्वेश्चन पूछोगे, वो उसका आंसर yes और no में ही देगा. उसके बाद वो आपसे ज़्यादा, हाँ, एक ड्रिंक, 2-3 ड्रिंक्स के बाद probably you sit together and you speak and then he will share some information. फिर भी very, मतलब लोग कम बात करते हैं. These are the some traits which I think as a community वहाँ पे, which is good, I guess. आपको शार्क टैंक से मिला क्या, ऑफर मिला था ना आपको? हाँ, हाँ, it was a तो 5 पैसा shark day. पैसा लिया आपने? नहीं, क्यों वो नहीं? नहीं. पर कोई भी एक भी फाउंडर ने पैसा नहीं लिया, मेरे को तो लग रहा है। मैं तो इतने लोगों से मिल रहा हूँ, सबने मना कर दिया। हाँ, मतलब आपने भी मना कर दिया। हाँ, ठीक है ना, मतलब एक तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग, नो डाउट इन दैट. लेकिन वो पैसा इज़ वेरी सीरियस, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट क्या होगा उसके बाद. पैसा आप ले भी लोगे तो व्हाट विल हैपन? दीज़ आर सीरियस थिंग्स व्हिच यू नीड टू डिस्कस. तो वो जब इफ इट इज़ नॉट अलाइनिंग, इफ यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग एवरीथिंग अंडर द सेम टेबल कि नहीं हो पाएगा, तो आप क्यों ही पैसा लोगे फिर? और इनफैक्ट कई बार तो खुद वो लोग भी मना करते हैं, शार्क्स भी मना करते हैं, क्योंकि वो लोग पे दे गो थ्रू योर पेपर वर्क एंड ऑल दैट. बट फाउंडर्स का आई थिंक इट इज़ मोर ऑन द फाउंडर्स हैंड, क्योंकि नाउ दे हैव टू टेक दिस जर्नी फॉरवर्ड, राइट? तो दे नीड टू, वहाँ पे तो टीवी में जा रहे हैं, डील मिलना चाहिए, ऐसा होता है. लेकिन आफ्टर यू कम बैक, यू रीथिंक कि क्या होगा, कौन से पार्टनर है, कितना पैसा आएगा, क्या वैल्यूएशन होगा, हाउ विल यू डू नेक्स्ट राउंड, ये वो ब्ला ब्ला. तो आई थिंक चलो, आपको अभी क्या लग रहा है, मतलब फैशन का जो फैशन ब्रांड है, ठीक है, वो फास्ट फैशन आ रहा है, 2 घंटे में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग तो नहीं है, क्योंकि मुझे एज ए कंज्यूमर, डू आई रियली नीड अ ड्रेस इन नेक्स्ट 2 hours? नो. बट येस, as a very busy consumer, probably suppose I have flight tomorrow, I need a white shirt. I can take the advantage of having a 2 hour delivery, और मैंने white shirt order किया, वो 2 hour में आ गया and मैंने पहना. लेकिन as a business owner of a fashion brand, I have to still understand how the management around exchange will happen, how returns will happen, how will you check the quality when a customer is returning, या आप कस्टमर को कितना अच्छा सर्विस दे पा रहे हो आफ्टर पोस्ट सेल. तो ये सब फिगर आउट करना एज अ ब्रांड. बट एज अ कंज्यूमर, आई डोंट नो, आई एम लाइक, आई रियली डू नॉट नो दैट इज इट रियली अ नीड ऑफ द आवर. लेकिन आई थिंक टू बी डिवाइडेड, कि क्लासिक्स है, कोई क्लासिक बना रहा है फैशन में, तो लोग ऑर्डर करेंगे और वो प्रोबेबली बार बार ऑर्डर आएगा. लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल फैशन है, कि कुछ पार्टी वेयर ड्रेस है या कुछ समथिंग कलरफुल, कुछ कुछ भी एक्सपेरिमेंटल हो, दैट हैज़ टू स्टिल हैपन, बिकॉज इट्स अ जर्नी, राइट? इट्स अ फील गुड थिंग व्हेन आई एम शॉपिंग. पहले तो ऐसा था कि हम स्टोर में जाके फील, वी यूज्ड टू गेट दैट फील गुड फैक्टर एंड देन वी शॉप. But now things have changed. People are getting that kick out of browsing your website, where you have lot of products, variety, videos and everything. So that is psychologically hitting your mind. और वो सब कुछ भी नहीं रहेगा, मैं जाके 1 मिनट में बस एक शर्ट ऑर्डर किया, 10 मिनट में आ गया. तो वो एक्सपीरियंस, मतलब वो शॉपिंग का जो वो रिटेल थेरेपी वाला जो एक्सपीरियंस है, वो कैसे रहेगा मतलब. सो एज ए सीईओ आपकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी में? I am more about the product. या चिल पिल सीईओ है? Chill pill, तो yes, of course, chill pill, but I'm more about the product, more about the people that we hire, who are there talking to people, and I'm more of a when I hire person, when we hire people, even my team, like today, even if I do not hire, my team leaders, they hire, we we see that they should be with us for a longer run. That is one of the thing which I really want in my company to be there. People should just not come for a year, 2 hours, or not maybe two, but they should be there. We should do this journey together. They should also reach somewhere. We should reach somewhere. So that is there. I try to maintain that a lot. That is one of my. सो हायरिंग में क्या प्रोसेस, मतलब क्या देखते हो आप हायरिंग के अंदर? सबसे पहले तो मैं यही देखती हूँ कि हाउ if that person can take ownership of the situation. That is very important for me, because I don't believe in micromanaging. I don't go every day and talk to people, aaj ye kar lo, ye kal kar lo. No, micromanagement is something which I cannot do. So if I have to have a people, they have to take ownership of things. That is the first and foremost क्या requirement. क्वेश्चन पूछते हो आप उनसे? मेरे से पूछो एक। So see, I always, the question, मैं तो basically सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन रहता है, do you follow any fashion brand? Which brand is your favorite?
एंड व्हाई? दिस इज द फर्स्ट थिंग आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एनी। अगर वो टेक में भी आता है ना, टेक का तो मैं इंटरव्यू इतना मैं नहीं लेती, लेकिन अगर वो ऑपरेशंस में कहीं पे भी आ रहा है ना, आई ऑलवेज आस्क कि कोई फैशन ब्रांड और ग्लोबली वो इंडिया में हो कोई भी हो, बताओ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज देन आई गेट टू लर्न कि व्हाई दैट ब्रांड इज देयर फेवरेट, व्हाट इज दैट दे आर डूइंग कि ये ब्रांड उनका फेवरेट है। सो आई ट्राई टू देन गो बैक एंड थिंक अबाउट अस कि वेयर वी कैन पुट आवरसेल्फ देयर। ठीक है। दिस इज वन थिंग व्हिच आई आस्क। बट आई आस्क कि फ्यूचर प्लान, मतलब ऐसा तो लाइक आई सेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लॉन्ग टर्म का हो, तो एनीथिंग अराउंड दैट इज व्हाट। गट फीलिंग्स होती है इसमें कुछ? हाँ, गट फीलिंग तो काम बहुत करती है? होता है, करता है। मेरा तो करता है कई बार नहीं भी करता है, लेकिन 70% ऑफ द टाइम करता है। इफ आई फील दैट नो द अदर पर्सन माइट नॉट बी विद अस फॉर लॉन्ग, फिर भी हम उसको रख लेते हैं। इनफैक्ट आई एम सो सैड, आई रन अ कंपनी इन गुवाहाटी। व्हेन वी डू इंटरव्यूज, पीपल आर लाइक यंग पीपल आस्किंग फॉर कि मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए। एट 21, 22 तुमको क्यों वर्क फ्रॉम होम चाहिए यार? कम टू ऑफिस, हाउ विल यू ग्रो, हाउ विल यू टॉक टू योर पीयर, हाउ विल यू अंडरस्टैंड हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू फेस द वर्ल्ड? अगर घर में बैठ के ही एक सिस्टम के सामने तुम कुछ काम कर रहे हो, यू विल नेवर ग्रो। कॉलेज में जो पढ़ाया पढ़ाया, बट दैट्स नॉट द कंप्लीट लर्निंग, राइट? योर लर्निंग कम्स व्हेन यू आर एक्सपोज टू द वर्ल्ड, एक्सपोज टू लॉट ऑफ पीपल, आई you meet your peer, you meet your hierarchy, या जो भी है, and you learn. People ask for this, young people ask for कि work from home दो, नहीं तो will not come. So I'm like ये क्या है? मतलब ठीक है, somebody after 40 कोई पूछ रहा है कि I have certain condition, तो मुझे चाहिए 3-4 दिन work from home. It's okay, it's understood, हो सकता है। Why a 20-year-old person needs work from home? Come मैं on, come to the office, meet people, or else we are all social animal. Meet people, learn from people. Why are you behind the screen every time? Why do you want that life? So I think ये थोड़ा sad part है। और आपके हस्बैंड मतलब जो वो कौन सी क्या पोस्ट पे है फिर वो आपकी कंपनी में? Oh, he looks after tech, he looks after finance, he looks after operations. So he's handling lot of like core या मतलब जो भी serious kind of thing है ना, so he's तो handling. क्या लगता है आपको एक फाउंडर को सारे काम करने चाहिए या डेलीगेट कर देना चाहिए? डेलीगेट करना चाहिए, बिल्कुल। आई मीन सी, जब कंपनी स्टार्ट होती है तब तो आप नहीं कर सकते ना, यू लेस ऑन रिसोर्स, लेस ऑन मनी काइंड ऑफ थिंग, लेस ऑन मनी, लेस ऑन रिसोर्स। बट वंस यू कैन अफोर्ड पीपल टू ब्रिंग इन पीपल, देन डेलीगेट। लाइक दैट्स व्हाई आई सेड पीपल विद हु कैन टेक ओनरशिप, क्योंकि आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते और वो खराब ही होगा अगर आप सब कुछ खुद करने जाओगे। तो हैव गुड पीपल हु अंडरस्टैंड्स योर विजन, हु इज ऑन सेम पेज, या यू कैन ब्रिंग देम ऑन सेम पेज। ऐसा तो नहीं कि कोई भी सेम पेज में आ ही जाएगा। यू हैव टू मोटिवेट देम, गिव देम दैट विजन कि हाँ, लेट्स वर्क इट आउट टुगेदर। तो शायद वो भी चिलपिल हो सकते हैं, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। हाँ, वैसे हमारे ऑफिस में तो सब चिल-पिल ही है। मुझे लग ही रहा है ऐसा। आई वुड लाइक, या यू कैन कम टू माय ऑफिस एंड वी यहाँ आर तो लाइक सब स्ट्रेस में है हमारे हाँ, यहाँ पे। एज़ पर नहीं, आई थिंक वो तो करना पड़ता है। इतना स्ट्रेस लेके भी देन फिर देन दे डोंट वांट टू कम टू योर ऑफिस नेक्स्ट डे। दैट्स व्हाट आई फील। दे डोंट फील दैट मोटिवेशन कि कल सुबह जाना है। सो मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है। हाँ, स्ट्रेस नहीं लेना है। थोड़ा स्ट्रेस लेने कूल से कुछ रहना। होगा नहीं क्या? मुझे तो नहीं लगता कुछ होता है। मैं तो चिल हूँ थोड़ी-सी, फिर भी स्ट्रेस एज़ अ वुमन, आई एम स्टिल अ वुमन, सो स्टिल टेक अ लिटिल स्ट्रेस। माय हस्बैंड तो डू नॉट टेक एनी स्ट्रेस, मतलब कुछ भी हो जाए, सब कुछ खराब भी हो जाएगा ना, फिर भी लाइक चलो विल सी टुमारो, दैट काइंड ऑफ, और वो हो जाता है ठीक। मतलब कल से अपन भी है। मेरे को तो बहुत टेंशन होता है मतलब। रियली? हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। नहीं यार, तो क्यों? मतलब लाइफ तो वही रहेगी ना, ऐसा कुछ क्या ही हो जाएगा? आप खराब भी कुछ हो रहा है और आप टेंशन ले रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं वो ठीक हो जाएगा। मत टेंशन लेने से क्या होता है, मतलब लगता है कि अभी हो जाएगा काम, नहीं, कर दैट्स देंगे। साइकोलॉजिकल। लगता है कि मैं कर रहा हूँ कुछ, पर आप कुछ कर नहीं रहे होते हो। यू आर जस्ट इन योर माइंड, यू आर जस्ट आई थिंक कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। माय हस्बैंड तो बिलीव कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी स्लीप। ही इज लाइक कि डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई विल स्लीप फॉर नेक्स्ट 2-3 आवर्स, आई विल वेक अप एंड विल फाइंड अ सॉल्यूशन। इनफैक्ट ही डज दैट व्हेनेवर इट इज तो आप वेरी, काउंसलिंग चालू कर दो ना एंटरप्रेन्योर के लिए। ही रियली डज इट। मैं एटलीस्ट अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं एटलीस्ट सोती नहीं हूँ। आई माइट बी जस्ट कुछ सीरियल देख लिया, कुछ टीवी मूवी देख लिया ऐसे। बट व्हाट ही टेल मी कि नहीं, डू नॉट डिस्टर्ब मी फॉर नेक्स्ट 2-3 आवर्स, आई वांट टू स्लीप, maybe have a drink, and then I'll wake up and we'll find a solution. then ऐसा हो ही अभी तक तो चल ही रहा है ऐसे तो। वाह! तो फिर आपका कैसा माइंडसेट बना इसमें बिज़नेस में आने का? मैं भी चिल ही रहना चाहती थी, लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैं दिल्ली में आई ना, आफ्टर मतलब मैंने जर्नलिज्म किया, फिर आई थॉट कि 1 साल दिल्ली में आई स्पेंड। कॉलेज-वॉलेज तो किया ना? हाँ, कॉलेज किया, उसके कॉलेज तो सब कर रहे हैं वहाँ पे। कॉलेज ऐसा एजुकेशन तो सभी कॉलेज जा रहे हैं, हायर स्टडीज़ भी कर रहे हैं।
तो मैंने भी कॉलेज किया, फिर मेरा भी यही मेंटल स्टेट था कि 1 ईयर आई विल एन्जॉय इन दिल्ली, आई गो बैक एंड वहाँ पे अगेन चिल। तो दैट वाज़ द आइडिया। लेकिन व्हेन आई गॉट इनटू दिस नो माय लास्ट कंपनी व्हिच वाज़ आल्सो एक्सीडेंटल कि I come from a place, not even Assam. I come from a very smaller place called Zero in Arunachal Pradesh. I'm from Assam, but how that my dad was posted there, so I am born like brought up there. तो वहाँ पे तो और भी कुछ नहीं, वहाँ पे वही 200 ही लोग थे और 200 people. I grew up like that and complete forest and मतलब nothing was. I did not know anything. तो entrepreneurship या business तो far away from it never came to occur to me. But when I started, I was very passionate about product like fashion or some arts. I was very passionate about something aesthetically good. पहले से ही तो that is how I got into fashion. So when I started my first company, I did not start कि मुझे business करना. I just wanted to be near fashion. कि कुछ तो I'll be near product, near fashion, read fashion magazine, look at the fashionable products. That was the intention I started. But फिर वो product is one of the last thing I guess. आपको business चलाना तो मतलब सब कुछ और ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए एंड देन इज़ हाउ आई लर्न्ड। फिर आफ्टर स्पेंडिंग सो मच टाइम यू गेट कॉम्पिटिटिव, राइट? टुडे आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, आई एम नहीं, लाइक बट उससे पहले की बात करते हैं थोड़ी सी, मतलब आपके कौन फाउंडर थे, आपने किसके साथ काम हाँ, किया, तो मैंने और जब आपने क्या किया, मतलब किसी कंपनी में जॉब किया था, राइट? मैंने जर्नलिज्म किया, हाँ, उसके बाद मैं जर्नलिज्म में भी क्या किया फिर? जर्नलिज्म मास्ट बैचलर्स इन मास कॉम एंड तो जर्नलिज्म। उसमें की कोई जॉब लगी आपकी फिर? नहीं, हाँ, मतलब जो मैंने आफ्टर दैट आई जॉइन्ड फॉर इंटर्नशिप्स। जैसे यू हैव टू गेट योर ट्रेनिंग इन लाइक आई जॉइन्ड हिंदुस्तान टाइम्स टू डू 6 मंथ्स इंटर्नशिप एंड ऑल दैट, कपल ऑफ मोर सच कंपनीज़। लेकिन वो 6 मंथ नहीं, मैं 2 मंथ ही करती थी। मेरा मतलब इतना मुझे वो नहीं, फॉर्च्यूनेटली इतना प्रेशर नहीं था दैट आई हैव टू अर्न एंड ऑल दैट। सो आई वाज़ लाइक कि ठीक है, यहाँ मन कर रहा है जा रहे हैं, नहीं मन कर रहा नहीं जा रहे, उस तरह का आई वाज़ डूइंग। बट देन आई गॉट इनटू I started working in PR for one American firm. So then is when I met I met my last co-founder because he was into tech and he was the one who actually asked me ki let's do, because he saw me. I was browsing fashion magazines every time. I would be going through lot of fashion websites. So us time 2012 में, it was not very common for people to do that. Today to everybody is exposed to a lot of things, but us time I used to go to all the fashion magazines online जो US में चल रहा है, यूरोप में चल रहा है, and I used to browse. So he was like, if you are so much interested, let's do something, let's start a fashion blog, write a blog and all that. So I thought ठीक है, I will write and I'll get to research on fashion. So that's what I wanted. So we started doing that for 1 month or so. We did that. Then he was मुझे तो नहीं पता था business का. He told me कि I think revenue बनाना मुश्किल है blog लिख के ये करके. It will be a very long term thing. So now that you are interested in fashion, why don't we sell products? Then I thought okay, I don't have मेरा तो कोई vision ही नहीं था ना, मुझे बस fashion से मतलब था, बाकी I had no vision. So I said okay fine, let's do that. So then is when we started, then I started going to market to explore the product. कि जैसे दिल्ली में I used to go to Karol Bagh market to explore shoes and we started with shoes. Shoes कैसे बनाता है या डायरेक्ट ही हम खरीद लेते थे पहले few months तो। फिर उसको फोटोग्राफ करके फिर वेबसाइट पे डालते थे और ऑर्डर 2012 में ऐसे ऑर्डर आना वाज वेरी अनलाइकली, नहीं, इवन बिल्कुल आई डिड कैसे नॉट, आएगा, नहीं हाँ, आएगा। आई डिड नॉट नो कि ऐसे ऑर्डर, मतलब मैंने कभी सुना ही नहीं था। तो Amazon just came, right, and all that. तो Flipkart was doing was also aggressive at that, started getting aggressive. तो लेकिन हमें ऑर्डर आने लग गया ऑन अच्छा, आवर ओन ऑर्डर भी आना, वेबसाइट। हाँ, ऑर्डर भी आने लगे ऑर्डर आने 2012 लग में? गया, मतलब कुछ हमने एफर्ट ऐसा नहीं कि एकदम हसल या कुछ भी, किसी को कुछ हमने बस प्रोडक्ट खरीदा, फोटोग्राफी किया, वेबसाइट पे डाला एंड उस टाइम ना गूगल का वो आता था, 4000 रुपीज का वाउचर्स खरीदने को मिलता था एंड यू कैन रन एड्स थ्रू इट। मेटा का भी ऐसा ही था, बहुत चीप था, इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज टुडे। सो आई वी यूज्ड टू डू दैट और ऑर्डर आता था, मतलब ऐसे करते करते 100 ऑर्डर्स भी पहुंच गया without putting much effort. Then we realized that no, this can be a big business. Then I also got serious because now you are targeting people. People will know you small, even though it was a smaller community. And then because I was still today I'm a very passionate about product kind of person. I have people like like my husband today. He is into operations and everything, but my passion is still the product. I'm too much into the product. So that's how I started getting into that and फिर yeah we then scaled it up, मतलब zero से लेके
80 crore of net revenue is what I left the former brand. और फिर उसके बाद स्टार्ट। बट आपने बोला कि आपने वहाँ पे पेपर वर्क नहीं किया था, हाँ, वो एक गलती, क्योंकि जैसे मैंने बोला तो चिल। पैसे नहीं मिले आपको? नहीं, नहीं, पैसे तो मिले, ऐसा नहीं है। वही ना, व्हेन यू आर नॉट एक्सपोज्ड टू लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे मुझे नहीं, और प्लस मेरे फैमिली में भी कोई बिजनेस में, मतलब जैसे अगर मेरे फादर या कोई होता तो दे वुड हैव गाइडेड मी, राइट, बट माय फादर वाज इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, नोबडी एल्स इन माय विसिनिटी हु आई कुड हैव शेयर्ड। ऐसा कुछ नहीं, मतलब कहीं से मुझे वो लर्निंग भी नहीं हुई। अच्छा, आप वेस्टर्न वियर में हो प्रॉपर्ली, राइट? हम्म। तो एथनिक वियर और वेस्टर्न वियर का मार्केट थोड़ा समझाओगे? मैं तो हमेशा ही वेस्टर्न वेयर कर रही हूँ, तो एथनिक वेयर तो मुझे खुद भी थोड़ा समझना है, बट व्हाट एज आई अंडरस्टैंड कि एथनिक वेयर इज मोर about unorganized shopping even today, and western wear is gearing for a lot of organized brands. As a brand, what I see, and ethnic wear has a lot of loyalty, and western wear do not have that loyalty, brand loyalty. Because if a brand from where I am buying my suits, Indian wear, if it fits me well, if I understand their design language, then I'll go back to them again and again, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वहीं से लेना है, उनको मेरा फिटिंग पता है या उस ब्रांड का फिट मुझे ठीक है। I understand the design language, so I will not experiment a lot. But when it comes to western wear, people are experimenting like crazy. यहाँ से भी ले लो, वहाँ से भी ले लो, इंस्टाग्राम पेज से भी ले लो, वेबसाइट से भी ले लो, मार्केट प्लेस से ले लो, कहीं से भी ले लो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस मुझे लगता है कि एथनिक और वेस्टर्न वेयर में है। बाकी customer of western wear is very young, so pros and cons both are there. Ethnic wear में थोड़ा सा matured customer ज़्यादा है after 35-40, so that maturity of the brand is of the consumer is also there, a brand has to be also there. So these are the few differences which I feel. तो जेन जी सबसे ज़्यादा ऑडियंस है। वेस्टर्न वेयर के लिए तो जेन जी ही है, लेकिन हाँ, सी अर्ली मिलेनियल्स, एवरीबडी इज वेयरिंग अ पैंट टू ऑफिस, राइट, एवरीबडी इज वेयरिंग अ शर्ट टू ऑफिस, सो वो तो एक एज ग्रुप है ही, लेकिन डेफिनेटली एक्सपेरिमेंटल फैशन जो हम लोग भी कर रहे हैं लिटिल बॉक्स में, जेन जी इज आवर मेजर ऑडियंस। सो ये कोरियन ड्रेस इंडिया में इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है आज? आपके भी पेज पे मैं देखता हूँ तो शायद मेरे को वैसा ही दिखता है कुछ, हाँ, सो दैट्स जापानीज, कोरियन। कोरियन या कोरियन ट्रेंड्स तो कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट हम लोग तो बहुत पहले से ही फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आज अभी लास्ट 3-4 ईयर्स में जो रेज यू विल सी इन नॉर्थ इंडिया और एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, वी हैव बीन फॉलोइंग देम सिंस लॉन्ग, लाइक व्हेन आई वाज लाइक 15-16 ईयर ओल्ड, तब से लेके वी हैड आवर ओन फेवरेट एक्टर, फेवरेट ड्रामा सिंस देन। बट क्यों ऐसा स्टार्टिंग में उधर क्यों है ऐसा है कि उधर की ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं? सो सी कोरियन एनीथिंग इज बिग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ पे पीपल आर क्रेजी अबाउट कोरियन फैशन, पहले से ही था, आज नहीं है, पहले से ही था। इवन लाइक आई ग्रू अप अराउंड ऑल ऑफ इट, आई अंडरस्टूड, लाइक आई सॉ सीरीज एंड सॉ मूवीज, कोरियन सीरीज मैंने पहले ही देखना शुरू कर दिया था बॉलीवुड से, तो ऐसे ही वहाँ पे एक एनवायरनमेंट पहले ही से था। आई थिंक द इन्फ्लुएंस, लॉट ऑफ people are influenced by those in that part of the country, people probably could connect, क्योंकि थोड़ा सा lot of habits, food habits are not lot but lot of similarity इन फूड हैबिट्स, कल्चरल थिंग भी थोड़ा जो जो ये नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ऑल्दो ऐसा कोई इतना वो नहीं है, बट एक कनेक्शन कुछ ना कुछ कहीं न कहीं, लाइक सॉफ्ट स्पीकिंग एंड ऑल दैट, दिस काइंड ऑफ ये सब तो दिस थिंग्स आर देयर, यू विल फिगर दैट आउट व्हेन कोरियंस आर वेरी सॉफ्ट स्पीकिंग एंड ऑल दैट। पर वो तो मैं कह रही हूँ, मतलब मुझे इतना एक्चुअली इतने डेप्थ में आई हैवंट गॉन, बट दैट इन्फ्लुएंस वाज़ ऑलवेज़ देयर, which we today see here in mainland, like in north, in southern part of the तो country. इसलिए वो आप इंडिया में ऐसा मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, हाँ, so I thought कि why not ride on that, because जब कोरियन ट्रेंड एनीथिंग कोरियन इज बिकमिंग ट्रेंडी, तो वैसे भी देखो फैशन में एंट्री बैरियर इज वेरी वेरी लाइक लो, राइट, एनीबडी कैन स्टार्ट अ फैशन कंपनी, इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट नहीं या कुछ भी, सो टू व्हेन यू स्टार्ट यू शुड हैव some niche which you can market on, so that you can say, yeah, why we are different from this particular fashion brand, because we are expert in this niche. राइट। आफ्टर सर्टेन पॉइंट, वंस यू आर एट अ स्केल, तब तो आपको सब कुछ ही करना पड़ता है, बिकॉज फैशन में स्टार्ट करना बहुत ईजी है, पर स्केल को बड़ा करना और स्केल मेंटेन करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। वो तो मतलब किसी भी ब्रांड के अंदर है ना, मतलब आप जो लैपटॉप का ले लो, चाहे
कोई भी इंडस्ट्री हाँ, लेकिन और लैपटॉप में आपको इतना जल्दी नया प्लेयर भी आता हुआ नहीं दिखेगा ना, आपका कंपटीशन तो फिर भी कम है। फैशन में तो एवरीडे एक इंस्टाग्राम एवरीडे आई डोंट नो हाउ मेनी इंस्टाग्राम पेजेस आर ओपनिंग व्हिच इज अराउंड फैशन या फिर वेबसाइट, बट हाउ मेनी लैपटॉप, हाउ मेनी फोन ब्रांड डू यू सी कमिंग एवरीडे? पर आजकल तो आ ही रहे हैं। पर कम है ना, फैशन को कंपेयर कर लो आजकल फिर भी, बट फिर भी फैशन जैसा नहीं है कि रोज एक नया वेबसाइट खुल रहा है। और जब इलेक्ट्रॉनिक या कुछ भी ऐसा करना है तो यू हैव टू कम विद द बैंग, पीपल यू हैव टू लेट पीपल नो दैट यस आई एग्जिस्ट। फैशन में ऐसा नहीं, आप अपने एक पर्टिकुलर कस्टमर ऑडियंस को पकड़ो और उनको सेल करो, दैट इज ईजियर, राइट? इसलिए लेकिन वो फिर स्केल कैसे, उसको सप्लाई चेन को बाद में मैनेज करना, दैट इज तो ये वेरी। वेस्टर्न वियर में आपने क्या पैटर्न नोटिस किया है कि मतलब जो आपके जो कपड़े हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से सीजन में खरीदे जाते हैं? See, to be very frank, we don't have any seasonality like that. Yes, trends differ. Yeah, in summer something will work. In, let's say, now dress is one of the best selling category for us today. As we approach November, October, December, then trousers become your best selling category. हम्म। तो कैटेगरी शिफ्ट हो जाता है बिटवीन वन सीजन टू अनदर, बट 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 ऐसा कुछ सीजनल। नहीं, जैसे मान लो गोवा जाने का सीजन होता है तो ज़्यादातर खरीदते हैं, हाँ, ऐसा कुछ? फिर पीपल स्टार्ट बाइंग मोर रिजॉर्ट वेयर, समथिंग व्हिच इज मोर फॉर वेकेशन व्हिच पीपल कैन वेयर। तो तो ऐसा हाँ, कोई ऑकवर्ड आपने नोटिस किया ऐसा कुछ? ऑकवर्ड तो नहीं नोटिस किया, लेकिन मैंने ये जरूर देखा है कि द वंस अ ट्रेंड स्टार्ट्स टू गेट पॉपुलर इन यूएस, देन आफ्टर 2-3 months इट गेट्स रियली पॉपुलर इन इंडिया ऑल्सो। ओके। सो और कभी-कभी ऐसे ब्रांड क्या होता है ना, वी डू अ लॉट ऑफ स्टडी अराउंड द ग्लोब, राइट? कहाँ क्या चल रहा है। तो सपोज हमने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर ट्रेंड को जल्दी लॉन्च कर दिया, तो वो नहीं चलता है। उसके लिए यू हैव टू गिव सम टाइम। हाँ, आफ्टर 6 मंथ से इंडिया में पॉपुलर होगा। तो वो इमीडिएटली अगर आप यूएस में पॉपुलर है और इमीडिएटली आप इंडिया में भी कर रहे हो, तो नॉट एवरी टाइम यू विल हिट दैट, क्योंकि वो जो 6 मंथ के बाद जो इंडिया में पॉपुलर होता है ना, दैट इज वेरी एविडेंट। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। सो यानी कल्चरल शिफ्ट आप कुछ देख रहे हो क्या अभी, जैसे वेस्टर्न वियर से, सॉरी, इंडियन वियर से वेस्टर्न वियर में ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, या वेस्टर्न वियर से इंडियन वियर में ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है? cultural shift only, but I would say that more experimental. People now are becoming more bold in terms of trying out a lot of fashion products. ऐसा नहीं था पहले। When I started my first company, people were still conservative about buying fashion. But today, एक तो any मतलब gender neutrality is there. Anybody, a man, even for us also on Little Box we have seen lot of men buying our shoes and styling them, lot of men buying our trousers and styling them, even top for that matter, which was a really, I run a fashion brand, which, but I was still surprised when I saw that. I saw a customer tagging us who bought one of our blue top. It was a transparent blue top. He bought it, he wore it, and he nailed it. So I saw that, like, wow, I mean, that I would not have, I haven't seen that in my former brand running in those years. But today people are more experimental, so it's good for us. Now we can also try a lot of things around it. मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो राइट, पर आजकल तो बोला जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, आपको मार्केटिंग करना है। अब इंडिया की सबसे बड़ी, मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल, दे डू नॉट मैन्युफैक्चर राइट, but बट they do मार्केटिंग, research, right? करते हाँ, हैं। तो आप फैशन ब्रांड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, रादर देन आप किसी को आउटसोर्स करके खुद मार्केटिंग कर सकते थे, सो क्यों ऐसा? see, मार्केटिंग तो कर, एक्चुअली इट्स बोथ साइड बैलेंस करना ना, एक डिमांड साइड और एक सप्लाई साइड। आई थिंक इन फैशन यू हैव टू बैलेंस इट आउट, क्योंकि आप अगर डिमांड जनरेट कर रहे हो और सप्लाई में लैग कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू बी देयर। सप्लाई स्ट्रांग है, डिमांड कम है, तो भी यू आर नॉट गोइंग टू बी देयर। फॉर मी, आई हैव टू बैलेंस दिस बोथ आउट। और वो आउटसोर्स करके भी हो सकता है, बट एक कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, एज फार एज व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो मैन्युफैक्चरिंग तो, for example, Zara still is doing more than 80% of the manufacturing in-house. The scale is so big कि वो 20% आउटसोर्स कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा हो रहा है। लेकिन why are they doing it? कुछ तो उनको लगता होगा ना कि yes, this is, or else they could have outsourced everything. But that's what I also believe in, कि consistency रखने के लिए, और as a brand, as a entrepreneur, वो cost of goods का unit economics and everything comes around. If you, और ये, I understand manufacturing is difficult, but if you can perfect it, if you get that, कि हाँ मैं कर लूँगी, then it scale also. In fact, manufacturing becomes easier at scale. राइट। So
और मार्केटिंग में क्या क्या कर रहे हो आप अब? मार्केटिंग में तो हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं मेनली, तो हमारा बिकॉज आवर कंप्लीट सेल्स कम थ्रू आवर ओन वेबसाइट, तो वी हैव टू स्पेंड ऑन परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड इट इज़ वेरी लिटिल पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बहुत कम, मतलब इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन we just started only, but that has been always been a very small part of our complete marketing. We're always like अभी 2 years ही हुआ हमें, तो we were doing performance marketing. तो गुस्सा कैसे करते हो, मतलब गुस्सा वाला इमोशन है आप में? हाँ है ना, वो तो आई थिंक मुझे मेरे हस्बैंड के ऊपर ही आता है खाली, तो इतना किसी और के साथ वो हो नहीं पाता, लेकिन नहीं इतना गुस्सा नहीं आता। तो नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों में गुस्सा नहीं है? हाँ, कम है मुझे लगता है। पीपल डू नॉट वांट टू गेट इनटू टू मच और फाइटिंग, ये वो, पीपल आर चिल्ड, तो थोड़ा चिल ही रहता है सब। टेंशन नहीं लोगों में वहाँ पे? टेंशन कम लेते हैं। क्यों? देखो वहाँ पे तो एक ऐसा भी नहीं है ना, पीपल आर नॉट एक्सपोज टू लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे इफ यू आर इन बैंगलोर और दिल्ली, यू आर एक्सपोज टू लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ कंपटीशन, राइट? So you also get into that competitive vibe and all that. So everything changes in your life. लेकिन in North East अभी भी lot of things are not एक तो explored नहीं किया लोगों ने, and by default people want to chill. People लोगों को लगता है I should eat well, sleep well, drink should be there available in the evening, and then just enjoy with my friends. Not get too complicated with life. एक वहाँ पे ना ले थोड़ा we call it a lazy vibe. People are lazy, but what I feel is that people are very chilled about life. They are not कि नहीं I have to be at top, which is also required, but then not at the price of their mental peace. So ये बहुत अच्छे से हम मतलब नॉर्थ ईस्ट में आता है लोगों को आता है. तो ये मतलब ऐसा ऐसा सिनारियो क्यों हुआ वहाँ पे? See, coming one of the सिर्फ story, एक्सपोजर के कारण? one of the very strong reason in exposure, because ईस्ट पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे तो बहुत कुछ गया ही नहीं, राइट? एंड नॉर्थ ईस्ट तो और भी ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड एंड ऑल दैट। कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, नेवर वाज देयर। टुडे मे नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट वी सी इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। But so people never got used to, you know, that such busy life, such life where people have to get competitive. So they were not there. A lot of people are into agriculture. Then tea was there, uh, service class, government job. So even today, people in even the younger population between 21 to 27 who are looking for job, they are more prone for government jobs. उनको लगता है कि नहीं एक गवर्नमेंट जॉब तो मिलना, मतलब इनफैक्ट अभी इतना वहाँ पे है बुरा स्टेट, मतलब द स्टेट ऑफ द सिचुएशन, दैट पीपल who have done good BTech and MTech, or not only BTech MTech but good academic degree, मास्टर्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट नाउ दे आर लुकिंग आफ्टर अ जॉब व्हिच इज थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड इन टर्म्स के, उसके लिए मास्टर्स नहीं चाहिए, उसके लिए 12th पास भी चलेगा, लेकिन पीपल विद दिस काइंड ऑफ डिग्रीज आर गोइंग, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, व्हिच इज आई थिंक वेरी बैड फॉर द स्टेट इटसेल्फ। राइट। क्योंकि एक तो कितना ही गवर्नमेंट भी जॉब जनरेट कर लेंगे, एक मिनिमम एक लिमिट तो उस पे भी है, प्लस if you're not geared up for doing something new, some innovations, then how is the state going to grow? राइट। Economic condition, चलो fortunately population less है वहाँ पे, तो economic conditions are much better. लेकिन it's not because that something great is happening. It's because that, okay, there are some natural resources which were there, then population is low, all this sums up for that. But it's people are not, I think they should, ठीक है chill रहना चाहिए, which I mean we also do not say कि एकदम you should be at compromising lot of things in life and you know fight for that ambition or something, but too much dependency on your like government job या अपने environment, it's not correct. You need to keep, you know, innovating yourself, which is not there. थैंक यू रिमझिम जी। Thanks for आप तो having बोल me. रहे थे आप बहुत कम बोलते हो। हाँ, नहीं मैं कम मैंने बोला ना मैं ज़्यादा बोलती हूँ। दैट्स व्हाई लाइक आई मेरे फैमिली में कोई भी यही बोलता है कि यू स्पीक अ लॉट, मतलब ज़्यादा ही बोलती हूँ मैं।